Hello everyone. So today we are starting with the PT 365 Art and Culture, and this is the first lecture of that. So here you can see that there are almost 6 topics in it, and we will be covering around 3 topics in today's list. Okay, so let us start with the first topic, Ancient Temple of the Gupta period. Can you please scroll? Okay, so see, the important things in this time is, first of all, you should know many things about the Gupta period. Okay, when it was started, then what was the vision of that? Okay. After that, the genealogy, the basically like Ghatotkacha was there, then Chandragupta, Samudragupta, Chandragupta II, and so on. Then after that, this archaeological survey of India. Okay, so this was founded by Alexander Cunningham in 1861, and the Ministry of the Culture has been attached to that office. Okay, so just remember this fact. After that, there is a Bilsart. Okay, so Bilsart place is important, and it is in UP. So there is a temple which we have found, like the remains are excavated recently. So because of that, it is in news. So Bilsart has been protected since 1928 and was known as the important Gupta period site. So this is the important Gupta's site. Then after that, this Shankh Lipi. Can anyone tell me what is Shankh Lipi? So see, it is nothing like tough. It is just a spiral binding. Okay, like the spiral characters has been found, and the Shankh Lipi is more or less found in the north central India. So there was a caution that it is found only in South India. So that statement is false. It is found around the north central India. And the Mundeshwari temple in Bihar, Udagiri caves in the MP. So these are the sites where we have found the shell inscription. So Udagiri caves is much important. This is in MP. Mundeshwari, you can just keep it in your mind, okay? But this fact is really important. Then after that, Shankh Lipi we have discussed, so we'll not go in much detail like what is Shankh Lipi and also we have just seen. So that much is important. Then after that, Dashavtar temple. Okay? So Dashavtar temple is in Devgarh and Bitagav temple is in Kanpur Dehat. So just remember these two temples as well, like Bhitagam is made up of bricks. So these things are important for prelims and also they have been the PYQs. So also they can ask you like Bhitagam temple belongs to which time, like Guptas, then Mauryas, Sangam age or Pallav age. So you just remember that it belongs to the Guptas age. Okay. Then there are, did you know me, there are 2-3 important points. First of all, Tamra port. So this belongs to the Gupta's time, and also like Tamra is again a PYQ. So the more focus should be on Tamra port. Then after that, Ajanta and the Bagh caves are the cave painting of the Gupta's time. Ajanta is in Maharashtra, Bagh is in Madhya Pradesh. Then during the Gupta time, the memorizing of the chronicle dynastic histories on epic tales was the work of different group of people, and they were called as Sutas and Magadhas. So all these 3 points in the did you know is a PYQ. Okay, so just have a look again on these 3 points. All are the PYQs. This one Magad wala PYQ is was asked in way back to 2016, and this Tamra was asked in like around 2002, 3, 4 something. Okay. So then we know Guptas were the first to build the structural temples. This is it in this, and one more thing was there that this one last point. Okay, the doorway to the square century tower of the Dashavtar temple is a fine example. Why? So see, you might have visited the temples and you might have come across some of the pictures like Mithun pictures are of the couples, then Ganga and Yamuna rivers are flowing through there. So they just depict these things on their walls. So that is it in it. Okay, now let us scroll to next page. So in this you should know what is Garbhagriha. Okay, these are the 5 main types of the Gupta temple. So the thing is you should not know what is type 1, 2, 3, 4. Rather, you should know like what is Garbhagriha, then Mandap. Mandap is a porch where you stand there, right? And then Eran. Eran is in MP, and it is a there was a inscription on which Sati, regarding Sati, the things were mentioned there. Then Shiv Temple Bhunga is in MP, Ladkhan is in a hole, and Parvati Temple at Nashna Kuthara. So again, this is in MP.
ठीक है. Pradakshina path is the path, like there is a circular ambulatory path on where you just take rounds, like no pradakshina we call it. ठीक है. So that is important. Then after that shikhar. So shikhar is the tower. Okay, and in South India or Dravida style we call it vimanas. So this is again important. Then panchayatan style of the architecture. So anyone can tell what is the panchayatan style of architecture? Okay. See what happens in Panchayata style. Like the main shrine is in center, and the four subsidiary shrines are in the corners of the main shrine. Okay, so this is something like Panch. Panch means five. So there are five shrines in total. Okay, so that is why it is named so Panchayatana. Okay. Then Nagara style, we know it is in mostly in the northern India and the north central part. Then in South India, we call it Dravida style, and in between around the Karnataka and these areas, we call it Visara style. Okay. That is written on this page. Okay, now let us move to the next page. Okay, then comes the Sun Temple of the Konark. So we know like this is in Odisha, and the another name of the Konark is also called as a Black Pagoda. Why so? Because of the sunlight it receives, and it had been a lot of dark color. And why it is in news? So recently they have asked to just remove the sand filled by the British from that time. Okay, so that is not important. The thing here to be focused upon is Jagmohan. So what is Jagmohan? Jagmohan is a hole. Okay, so we call Jagmohan as a hole. And then after that, just have a small focus upon the Sun Temple of the Konark. So this is dedicated to sun because the name is itself including the sun. So Sun Temple is for sun. And then it was built by the King Narasimha Dev I. And after that, we have this Kenduli copper plate inscription, which talks about that dynasty. So that was constructed by the Eastern Ganga dynasty. Here is a chart. Okay, map is provided to you to just have a focus upon all the sun temples which are in India. So let us have a look. See, Martan Sun Temple. Again, the sun word is here. So Jammu Kashmir, Brahmadev. This one is also Gujarat. Ka Modhera Sun Temple is really very much famous. Okay, so you would be knowing this one. Surya ka Kovil. So Kovil, the name Kovil, if it is present, so you can just mark the Tamil Nadu. Okay, many a times the Kovil word is there only. Then Uttarakhand ka temple is there. Assam Surya Pahad temple. One more temple is in Assam, Kamakhya Devi temple. Okay, though it is not a sun temple, but it is in Assam only. Then Dakshin temple and the Arasavali. So Arasavali is again in the Andhra Pradesh, and it is also a PYQ. So just mark these PYQs. Okay. Then Chandrabhaga like received the blue flag certification. We know this. Okay. Who provides the blue flag? FEE, Foundation for the Environment Education something. Then Konark Dance Festival. So that place is there only. So that is why it has been named after that only. Please scroll. So see Kalinga architecture. ठीक है, तो Kalinga architecture में there are some names like Rekha Deol, Jagmohan or Assembly Hall, ठीक है, and then Nat Mandir or Dance Hall, and also like Vimana. So Vimana is another name for the Deval. Deval is the pillar. We call in North India as a pillar only or shikhar, but in the Odisha Kalinga style it is called as that Deval. Okay, and the Jagmohan is denoted for the Assembly Hall. Okay, scroll. Then Kalinga architecture we have seen. So let us have a focus on this graphic. Okay, so here you can see Deval, they have denoted towards the shikhar. Then Jagmohan is the whole. Okay, and Bhog Mandir are the small shrines or small temples made around the great temple. Then Kalinga architecture flourished around the Mahanadi and Godavari river. So this is only important. And Khakra, Deval, Rekha Deval. These are the just like the styles of the Kalinga temple. So just remember this one. Okay, rest Rekha, Pida, these things you can skip. Okay. So now let us move towards the next. Next is reclining Buddha. Okay.
So reclining Buddha is something which is depicted as he have reclined, means he took the parinirvana stage. So the reclining Buddha statue represents the Buddha during the last illness, means he is just about to enter into the stage of the parinirvana. And the largest Buddha has been installed in the Bodh Gaya, Bihar. So Bodh Gaya is the site where he received the enlightenment, and the Sarnath was the place where for the first time he given the sermon. Okay? So this is important. Then after that, let us focus upon the Gandhara art features. So as we know that Gandhara was a place around the northwest India, so it was flourished there itself, and it is made up of the grey bluish color, means the grey color is the basic premises of the Gandhara art culture, and the Gandhara art culture has depicted the Buddhist in their pictures. And who was the patron that time? Kushana dynasty, and majorly Kanishk is considered as the father of the Gandhara art because he flourished that mostly there. Okay, and sculpture ka basic features they have mentioned, so that is like spiritual Buddha is there, bearded moustache, wearing less ornaments, and the wavy hair. Okay? So in Gandhara art, how it is different from the Mathura art, because in Mathura the things are like really going nice. The hairs are perfect. Then after that they have the drapery, sorry. So that is folded perfectly. But here it is not like in a perfect way. Okay. And also here they have the elongated ears, but in that case the ears are not elongated, and he has been depicted in a perfect beauty. Okay. So next is a reclining Buddha in India, like in India where you can find the reclining Buddha. So Buddha इंडिया में कहाँ पे है, एक दो जगह इन्होंने जैसे मेंशन की है कुशीनगर. सो कुशीनगर अगेन इंपॉर्टेंट प्लेस है यूपी के अंदर, जहाँ पे बुद्धा ने परिनिर्वाणा को अटेन किया था. ठीक है. सो एंड अगर इंडिया में था तो फिर बाहर भी होगा, तो बाहर मतलब इंडिया से कहाँ कहाँ पे है, दे हैव मेंशन जैसे श्रीलंका एंड इंडिया में उनको ज्यादातर सिटिंग पोस्चर्स में दिखाया हुआ है, और रिक्लाइनिंग पोस्चर ज्यादातर कहाँ पे, थाईलैंड, मीन्स साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है ना वो ज्यादा है वहां पे. ठीक है. Then next we have is the wait. Okay, then next we have the reclining Buddha outside India. We have seen, and this one is important, Bhamal Buddha Parinirvan in Pakistan. So this is important. Just have a major focus here itself. Okay. I guess now I can share my screen. Let me try, then we can continue. Wait. Okay, so my screen is visible to everyone now. In case not visible, so let me know. Yes, ma'am, visible. Visible. Thanks a lot. Thanks a lot, Arvind. If I would need the help, we'll talk to you again regarding this. Okay. Thanks a lot. So where we were? Because the thing is, I need my pen to work upon. So that is a major issue. Okay, so Gandhara feature art, here we were. So see, you can see mainly Buddhists. These are Kushana dynasty, northwest frontier were there, and spiritual Buddha. We have discussed, this one is important. Again, this one is really important. Did you know wala part? So this is again a PYQ. If anyone can remember 2017, I guess, no? Okay. So 2017 May it was asked. Ajanta painting, Padampan. So, sorry. Okay, moving ahead. This we have discussed, and this you can just have a focus for your knowledge. Okay, so miniature sculpture है एक बुद्धा का, कहाँ पे मिला? उडुपी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक. So Udupi is important. ठीक है, Udupi you should know just like, क्योंकि this is a historical site and they ask the historical sites. ठीक है. So next is this one. So we will go in great detail regarding this at least. ठीक है. So first is Himyan Buddhism, Mahayana Buddhism, Theravada, Vajrayana. So Vajrayana is a branch of the Mahayana. ठीक है. So Himyan क्या है? Lesser है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल है बहुत ज्यादा. ठीक है. और ये आइडल वर्शिप में नहीं मानते थे. जस्ट रिमेंबर दिस वन. ठीक है. एंड पाली लैंग्वेज इनकी थी. वेयर इज महायान का जो बेसिक फोकस था दैट वाज बोधि सत्व. ठीक है. सो बोधि सत्व जो था इनका मेजर फोकस था, तो ये याद रखना. उसके बाद ग्रेटर विकल था, ये ज्यादातर लिबरल थे. ठीक है, अपनी सोच में, अपने वर्क
प्रोसेस में। हेवनली लेस ऑफ बुद्धा में ये बिलीव करते थे एंड आइडल इमेज को मानते थे, ये नहीं मानते थे। थेरवाद बुद्धिज्म के अंदर क्या था, स्थावरवाद, ठीक है, जो हीनयान का ही एक सबसेक्ट आ जाता है। तो इसके अंदर क्या कहते थे, ये एक होता है विभाजवाद। विभाजवाद का मतलब होता है कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो दैट शुड बी एट एनालिसिस, ठीक है, एज वी आर डूइंग नाउ ना, सो इट इज सॉर्ट ऑफ द विभाजवाद, मीन्स यू आर जस्ट एनालाइजिंग द थिंग एंड देन यू आर ग्रस्पिंग द कॉन्सेप्ट। देन वी हैव द Vajrayana. So Vajrayana is a tantric, and Tara was there. Tara is a name of lady, so that is considered as the better half of the Buddha. Okay, and this fact is as per the NCRT. Fine. Okay, so that is it, and we know what is this tantrism, like black magic and yantai, tantai, mantai, something. Okay, so this is it important. This, remember this one, okay. So I have seen like many test quizzes are saying that, for example, there is one statement, Bodhisattva is included as a part of the lesser vehicle. This is true or false? So it is part of the greater vehicle, na, Mahayana sect. Exactly. Okay, so this is a part of greater vehicle, so this statement would be false. Now moving ahead. So there are some these positions, mudras we call it. So Bhumi Sparsh mein, just you have to focus only upon the highlighted part. Okay, if you would do this only, it will help you something. Okay, don't just go by the lines, just focus upon this only. So what is Bhumi Sparsha? This is again PYQ. So in PYQ, I would be stressing more. Okay, rest you can do yourself, but my exercise is just to make you well versed with the PYQs. So Bhumi Sparsha Mudra, and it symbolizes the Mara Vijay. What is Mara Vijay? That he is witnessing that I'm doing my asceticism. So if anyone is just like trying to interfering or just trying to diverting me, so please just have a look about that. I will be doing my asceticism. Okay, so this is related to Buddha. Varad Mudra is something like charity. Means Varad Shakti bhi bola jata hai na, many time if you just being compassionate or you grant your wishes to someone, so it is called as charity. Anjali. Anjali is something like namaste. Okay, salutation hota hai, Anjali. Then Vitaika. Vitaika, many times we call it ना कि don't do Vitaik. Vitaik का मतलब होता है argument करना, discussion करना, और बहुत ज़्यादा ना अंदर चले जाना discussion के. तो that is called Taik Vitaika. अभय. अभय is like कि किसी का भय ना हो. मतलब भय ना होना मतलब कि किसी से नहीं डरना. So it is like अभय. Shepan Mudra is something like कि let it be, okay, let go, let it be. So this, and Vajra Mudra. Vajra Mudra is something which is depicting your knowledge, your wisdom. Dharm Chakra we know, so PYQ it is. Okay, Dharm Chakra is also symbolized by the that eightfold, so middle path of the Buddha. Okay. Then Karan Mudra. Karan Mudra is like you are just expelling the bad devils. And Dhyan Mudra, you are focused. Uttara Bodhi Mudra means you are just energizing yourself. You are symbolizing that the things are going perfectly and as done by you. Okay, then there are some sites which have been discovered recently, so our focus is just to focus upon the name of the place, where it is, and why. Okay, so 3: why, where, and what. Okay, so these 3 things are our focus majorly. So let us start with this. So 1600-year-old found in the Haryana. So there is a one site called as archaeological site found in the Sandhai village, Haryana. Okay, and the remains of the statue has been found there. Then after that, Purnai River. So this is in Tamil Nadu. Okay, Purnai. So okay, that can be like just remembered by name itself. Okay, so rest things are not as much important. If you want to go through, you can go through later. Okay, my focus is still here only. Then Ellora caves. These are much important. Maharashtra we know. Okay, and it is for all sect. Okay, all sect it is. But if I say Ajanta, so Ajanta is only for Buddha. Ajanta is only for Buddha, whereas Ellora is for all. Okay, Sahyadri Hills, Aurangabad, Maharashtra. Then after that, this is one of the largest single rock cut monastic cave, and these are containing the Kailasha caves. Okay. Then Trishmi Buddhist cave. This is again important because it is also called as Pandavleni, and this is also a PYQ thing.
Okay, so it is in Maharashtra, and they have the vranda. So vranda is something like you called patios. Okay, we have the patios in the modern houses. So that is same like the vrandas of that time. Then viharas and chaityas. So again a PYQ. So vihara is a place where you dwell, you rest. Okay, and chaityas are the places of the worship. ठीक है. Buddhist cave in India, so ये सभी को पता होगी. ठीक है. The first one is the Bihar Brabar caves. ठीक है. Oldest cave it is. It is the oldest cave. Ratnagiri, these all are in the Odisha. Dholi is of Maurya's time basically. Okay. Nagarjuna और Konda caves. यहाँ पे एक गोली भी है, GOLI. ठीक है. So all these are the Andhra Pradesh things. Okay. Maharashtra में we know ये these are the basic things. Ajanta, Ellora, Kanheri caves. Okay. And also there is one more Karle, KARLE. ठीक है. So Karle belongs to the Satwahan time. Sorry. Then next comes the Bar caves. Again, यहाँ पे एक भीमबेटका cave है. Though it is not related to Buddha, but भीमबेटका cave is also there. देन रंपाकली टेम्पल का जस्ट फोकस किए कहाँ पे, बांग्लादेश में है. ठीक है. यहाँ पे एक स्पिरिचुअल बॉन्ड अभी इंडिया बांग्लादेश ने जैसे आपस में मीटिंग की थी, तो उन्होंने एज अ टोकन ऑफ ट्रिब्यूट उन्होंने वहां पे किया था. सब्ज बुर्ज, दिस इज बिसाइड द हुमायूं टॉम इन न्यू दिल्ली, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लू छतरी, बिकॉज ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, यू कैन सी दिस इज अ छतरी समथिंग, छत्र भी कॉल है ना. तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज कॉल्ड एज नीली और ब्लू. नीली इज इन हिंदी. ओके, नीला कलर जो होता है, तो दैट इज ब्लू कलर. And it is in the Timur style. So Timur वाला जो style है, that is called as a Timur style, synonymous with the Central Asia. Why? So because वही Islamic जो Islamic styles आए थे वो basically वहीं से आए थे. ठीक है. तो because of that it is called so. Blue छतरी is for because of this. And double dome, can you see ये दो डोम हो गए हैं, जैसे एक तो ये हो गया एक टाइप से, and again एक ये हो गया. So it is something double dome thing. तो this is the double dome structure. ठीक है. Then coming to the second part, so we'll be going थोड़ा सा fast fashion. ठीक है. So first is the Mangai Bani caves. ठीक है. ये अपर पैलियोलिथिक की केव है. The focus is this song. ठीक है. Mangai Bani and Haryana Vishnu. ठीक है. That is it. Rest what we know is that Bhimbetka caves are the Madhya Pradesh. Why Bhimbetka? Because ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे एक बार भीम बैठे थे, तो उसी से भीमबेटका caves का नेम हो गया है. लखोदिया केव्स. ठीक है. ये हमने एनसीईआरटी के सेशंस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. सो अभी डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बस रिवर देख लेते हैं. ये जो है ये सुयाल रिवर है. ठीक है. SUYAL, सुयाल रिवर. जोगीमारा इज इन छत्तीसगढ़. दिस इज इन तेलंगाना. भीमबेटका इज इन मध्य प्रदेश. एंड दैट इज इट. बाकी इनकी जो थीम्स रहती है, जस्ट हैव अ फोकस ऑन द थीम्स. सो व्हाट आर द थीम्स? थीम्स आर लाइक डेली लाइफ इवेंट्स लाइक हंटिंग, हॉर्स, एलिफेंट राइडर, हनी कलेक्शन, व्हाइट, येलो, पर्पल, रेड और ग्रे कलर्स जो है, ऑल द कलर्स हैज बीन यूज्ड हियर. सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भीमबेटका था ना, दिस वाज समथिंग ये सभी एज में मिल गया आपको. पैलियो में भी मिल गया, मेसो में भी मिल गया, नियो में मिल गया. ठीक है. तो बाकी आप एक बार अपने आप देख लेना, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है. बस मंगई केव जो आर्ट है बहुत ओल्ड है. ठीक है. सो दैट इज इट इन दिस. ओके. अब थोड़ा सा हम प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक के मेन फीचर्स देख लेते हैं कि इधर मैन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिक साइन यूज हुए थे. इधर क्या था, रिलीजियस, माइथोलॉजिकल, लाइक ना यहाँ पे रिलीजन आ गया, और ये थोड़ा सा क्या है, सेक्युलर टाइप ऑफ थिंग हो गया. ठीक है. देन प्री हिस्टोरिक में ये पता ही होगा, सभी ने देखी होंगी वो कपल्स हैव मेट देयर हैंड्स. तो ऐसी ऐसी पिक्चर्स हैं यहाँ पे, और ऐसा यहाँ पे कि ज्योमेट्रिक साइंस में. ठीक है. कलर्स, बेसिक कलर है काजल, चौक, व्हाइट, टेरावाइट. So these are the important things. You can just skip it. Now let us move towards this topic. So upper Paleolithic में the focus was the animal and human. वो the Mesolithic, they because see as the time evolved, इंसान का जो culture होता है वो evolve होता है, तो उसके साथ उसकी theme भी बढ़ती गई. ठीक है. So this is some bit sort of that only कि पहले उनके पास क्या था, iconic and animal and human form, basic things थी. जैसे जैसे टाइम बढ़ा उन्होंने motives, डिजाइन, उन चीजों को और थोड़ा सा ऑर्नामेंटेड करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. डांस, प्रेग्नेंट वीमेन, चाइल्ड बर्थ, ये सभी सीन दिखाए गए हैं. ओके. एंड फिर जैसे नियोलिथिक आता है,
ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा और हो गया, जैसे बहुत ज्यादा सिमेटिक हो गया, स्टाइलिश हो गया, बहुत ज्यादा थीम इसके अंदर, और तो वो ज्यादा थीमेटिक होता गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या, चतुर्भुजनाथ नाला, तो ये थोड़ा सा है, पिगली हाल और ये तेकलकोटा। ठीक है, तो ये साइट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है बस। भीमबेटका एमपी में अभी डिस्कस, लखा जोहार। ठीक है, ये थोड़ा सा ना ये फोकस ज्यादा है, बाकी बीच का ना यू कैन जस्ट स्किप द थिंग्स। ठीक है, दे विल नॉट बी आस्किंग, तो यू कैन स्किप इट अगेन। कलमकारी पेंटिंग, सो कलमकारी पेंटिंग्स में क्या होता है, बेसिकली एक जैसे कॉटन टेक्सटाइल का पीस होता है, कॉटन टेक्सटाइल के पीस के ऊपर वो ब्लॉक पेंटिंग बनाते हैं। तो कलम का मतलब होता है पेन, करी का मतलब होता है काम। जैसे चिकन करी होता है तो उसमें वो करी इज डिनोटेड टुवर्ड्स द काम, तो उसमें क्या होता है, कलम मतलब पेन से वो ड्राइंग की जाती है। ठीक है, तो उससे बहुत प्रिसीजन आता है, मीन्स जो शेप्स बनाई जाती है वो बहुत ज्यादा साइन जो होते हैं वो प्रिसीजन में होते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने कुछ स्पेशल मेंशन किया। तो एक ये फैक्ट की वजह से ये न्यूज में है, बिकॉज कोई चीज न्यूज में है तो देयर इज अ रीजन, देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर द सेम। सो द कर्पूरी पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग जो है वो तमिलनाडु से मिली है, जीआई टैग उसको अभी रिसेंटली मिला है। ठीक है, दैट इज इट, बाकी ये आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, तो बेसिक थिंग इज हैंड प्रिंटेड, ब्लॉक प्रिंटेड होता है ये, मेनली साउथ इंडिया में है। ठीक है, कलमकारी की हमने देख लिया। ठीक है, अगेन पीवाईक्यू। ठीक है, सो दिस इज अ पीवाईक्यू, पीवाईक्यू 2018। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर। सो बनी ठनी जो पेंटिंग है वो किशनगढ़ स्कूल बिलोंग्स टू राजस्थान आज। ओके, देन द नेम ऑफ द निहाल चंद के नाम पे है ये। जो बनी ठनी है वो एक सिंगर, एंड जो मतलब पेंटिंग का सब्जेक्ट है वो कि बनी ठनी वाज अ सिंगर पोएट इन किशनगढ़, एंड देन इन्हीं के नाम पे इसको इनकी पेंटिंग बना। कलाहस्ती जो है वो चेन्नई में यानी तमिलनाडु में, एंड मसूलीपट्टनम इज समथिंग जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिहाज से भी वेरी मच इम्पोर्टेंट है। तो एनीवन कैन टेल मी मसूलीपट्टनम में क्या क्या एक दो चीजें हुई थी। ठीक है, तो पहले डच की फैक्ट्री मतलब बनी थी। फोर। हाँ। ओके, डच की फैक्ट्री थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेड बेसिकली होता था ज्यादातर, ठीक है, वो मसूलीपट्टनम से वो लोग करते थे। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, दिस इज ई, दिस इज एशिया। सब्जेक्ट क्या होता था इस बेसिकली का, जो पिक्चर है इसका, लाइक हिंदू डिटीज, क्योंकि यहाँ पे भी देखा होगा ना, दीज आर समथिंग हिंदू डिटीज, एंड ये कोई ऐसा लगा जैसे माइथोलॉजिकल टेल की स्टोरी बता रहे हो। ठीक है, तो ऐसी पिक्चर्स वहां पे होती है। ओके, देन विल मछलीपट्टनम स्टाइल यू कैन जस्ट सी। ठीक है, तो मछलीपट्टनम स्टाइल जो है वो पर्शियन स्टाइल से इंग्रेव्ड है, एंड जो मोटिव्स होते हैं यहाँ पे ट्री, फ्लावर, लीफ डिजाइन। ठीक है, दैट इज इट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, फॉक पेंटिंग्स। ठीक है, तो फॉक पेंटिंग्स में वी नो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मधुबनी जीआई टैग इसके पास है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एक बार हम देख लेते हैं और था का। ठीक है, पीवाईक्यू। ओके, सो दैट इज इट। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। सो मंजूषा, मंजूषा का मतलब होता है स्नेक। ठीक है, तो मंजूषा पेंटिंग जो है बिहार की है, दैट इज इट। इससे ज्यादा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग, यू कैन जस्ट स्विच टू योर सोर्स। ठीक है, सोरा पेंटिंग इज फ्रॉम ओडिशा, एंड वॉल म्यूरल पेंटिंग होती है सिमिलर टू वर्ली। बिकॉज वर्ली को सिमिलर क्यों बोला है, क्योंकि वर्ली पेंटिंग जो होती है ना वो ट्राइबल वीमेन करती है, और उसमें थोड़ा ट्राइबल सीन्स दिखाए जाते हैं, इस वजह से बोला गया कि इट इज सिमिलर टू दिस। ठीक है, पटवा पेंटिंग कहा कि बंगाल की है। अच्छा, ओके, मेंशन ही है यहाँ पे। ठीक है, बंगाल की है। उसके बाद मंगल काव्यस, जो मंगल काव्यस मतलब होता है जैसे मंगल काव्यस मतलब जैसे लाइक अराउंड द वेडिंग्स एंड ऑल, तो वो कुछ गीत समथिंग होते हैं, तो उन्हें मंगल काव्य बोला जाता है। ठीक है, तो वो स्टोरी टेलिंग से, स्टोरी टेलिंग तो हर ऑलमोस्ट जो होता है पेंटिंग उसका यही थीम होता है। ठीक है, वर्ली पेंटिंग भी हैव सीन, ये ट्राइबल आर्ट है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी है, गुजरात एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर पे होता है। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज सपोज इंडिया, तो यहां से लेके यहां तक इतने में आपका यहाँ पे वर्ली पेंटिंग होता है। ठीक है, फर पेंटिंग इज फ्रॉम राजस्थान, एंड पिथौरा इज फ्रॉम अगेन राजस्थान, ओ गुजरात है। ठीक है, सॉरी, ये है राजस्थान का, पिथौरा इज फ्रॉम गुजरात एंड मध्य प्रदेश, चेरियाल तमिल तेलंगाना का। ठीक है, एंड निर्मल पेंटिंग्स भी है यहाँ का एक, NIR, निर्मल पेंटिंग्स।
सिखिज्म। और ये जो थांका है, थांका बेसिकली सिक्किम का है, ठीक है, वैसे वैसे सिक्किम का है, बट क्योंकि ये जो जितनी भी जगह, ये यहाँ पे सभी जगह बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ था, ठीक है, तो इस वजह से इट इज सेड। सो ये PYQ है, सो जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है, बुद्धिज्म से ये रिलेटेड है। पैतकाल झारखंड की पेंटिंग है, और इसके अंदर पोस्ट डेथ में कैसी लाइफ होती होगी ना, ये दिखाया जाता है। इसका एक दूसरा नाम है मां मनसा पेंटिंग्स, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पट्टाचित्र उड़ीसा का है। पट्टाचित्र का मतलब होता है कि जैसे एक पट्टा है, एक टाइप का स्क्रोल है, उसके ऊपर चित्र बनाए गए हैं, तो सो दिस इज पट्टाचित्र। एंड वैष्णव कल्ट इसमें दिखाए गए। वैष्णव कल्ट मीन्स विष्णु वाला जो होता है वो दिखाया गया। मधुबनी तो ठीक है, मधुबनी का एक बेसिक थिंग क्या है ना, इसमें कोई भी जगह नहीं छोड़ते, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ दे विल कोट, ठीक है, तो मतलब अगर ये पेंटिंग है, ये एक पेपर था, यू कैन सी, अभी इसमें इन्होंने कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा, मतलब ये स्पेस बचा तो फिश, यहाँ पे कोई जगह बची तो इन्होंने कुछ फ्लाई या आइबेस्क टाइप बना दिया, ठीक है, तो मीन्स दे लीव नो स्पेस एम्प्टी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पेंटिंग। एक बार मंजूषा बिहार, मधुबनी बिहार, सोगा ओडिशा, पत्ताचित्रा उड़ीसा, पटुआ बंगाल, पैतका झारखंड, वर्ली महाराष्ट्र, थांका सिक्किम, और वो जो टोटल बेल्ट है ना जिसका चाइना से बॉर्डर भिड़ता है, ठीक है, तो फड़ राजस्थान, केरल, तेलंगाना, पिथौरा, गुजरात, मध्य प्रदेश। नाउ कमिंग टू द पुतुल नाच, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पपेट्री, ठीक है, सो पपेट्री, लेट अस स्टार्ट। सो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, द थिंग इज यू शुड नो व्हाट इज पुतुल नाच। सो पुतुल नाच जो है वो एक गॉड पपेट्री है, असम का, वेस्ट बंगाल का, ऑलमोस्ट ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। So you can see here, what is it? This is god puppetry from the West Bengal, Assam side. Then असम साइड में भी ये होता है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया। बाकी ये बस ये याद रखना, ये एक ना अंकिया नार्स होते हैं, ठीक है, इनको ओजापल्ली भी बोलते हैं, OJAPAL, ओजापल्ली, ठीक है, तो ये एक टाइप के ना फोक सॉन्ग्स होते हैं, तो इनके स्टाइल में ये वहां पे की करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये पपेट्रीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग पपेट्री, स्ट्रिंग पपेट्री का मतलब जिसमें स्ट्रिंग्स होंगे, मीन्स धागे होंगे, ठीक है। शेडो का मतलब छाया, तो ये क्या होता है ना, जैसे कर्टेन होता है, कर्टेन के पीछे सब कुछ होता है, आगे बस दिखता है आपको उसके रिफ्लेक्शन की वजह से। ग्लोव का मतलब है कि आपने उसको हाथ में डाल लिया ना, एज अ ग्लोव, ये हाथ में डाल लिया है, एंड देन दे जस्ट ऑपरेट दैट। एंड गॉड पपेट इज समथिंग की पपेट होता है, ऐसे मान लो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पपेट, एंड इसके ये फॉर एग्जाम्पल ड्रेस है, और इसके नीचे एक रॉड फिक्स की होती है उन्होंने, ठीक है, एंड रॉड को फिक्स करके दे ऑपरेट, ठीक है। सो अब है स्ट्रिंग पपेट। स्ट्रिंग पपेट में लाइक कठपुतली है राजस्थान का, गोम्बेटा कर्नाटका, बोमलट्टम तमिलनाडु, कुंदई ओडिशा, रावण छाया ओडिशा, तो गालू गोम्बेटा। सी गोम्बेटा अगर खाली पूछा जाता, अगर गोम्बेटा खाली होता तो भी कर्नाटक है, तो गालू पूछा तो भी कर्नाटक है, बट अगर बोम लट्टम खाली पूछा जाएगा तो तमिलनाडु हो जाता है, और अगर थोलू बोम लट्टम हो जाएगा सो देन इट इज आंध्र प्रदेश। ओके, ग्लोव पपेट में ना, ग्लोव पपेट में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, वो है पावाकुतु, ठीक है, पावाकुतु केरल का, एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा आ जाता है, यमपुरी है वो बिहार का, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द पपेट्री सेक्शन, लाइक वी हैव डिस्कस्ड अ मेजर पार्ट ऑफ द फिल्म्स, ठीक है, तो ये पपेट्री सेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, पपेट्री इन इंडिया, सो अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज जस्ट अ ग्लैंस। कठपुतली ये क्या था, स्ट्रिंग था, ठीक है, स्ट्रिंग धागे वाला था। बिहार यमपुरी गॉड पपेट था। पुतुल नाच गॉड था। वेस्ट बंगाल ये वाला, ठीक है, कुंदई, कुंदई अगेन गॉड है। रावण छाया इज अ शेडो पपेट, ओडिशा का। थोलू बोमलट्टा, बोम लट्टम, ठीक है, ये स्ट्रिंग था। पावाकुथु आ गया, ठीक है। गोम्बे अटा, गोम्बे अटा ये स्ट्रिंग है, और ये वाला जो है ये शेडो, ठीक है, शेडो। सो दिस वाज ऑल, बट दिस टाइम वी शुड रियली अप्रिशिएट विजम को, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से मैप्स को डाला है इसमें, ठीक है। सो टॉय कैथन, ठीक है, टॉय कैथन इज नथिंग जस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड दिस इज अ इनोवेटिव वे कि कैसे टॉयज को जो है वो कंसेप्चुअलाइज किया जाए, इसका कॉन्सेप्ट, बिकॉज जो टॉयज है दैट प्रोवाइड अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू मेजर जनता। ओके, तो इसमें ना ये इधर कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है, बस एक बात जो पता होनी चाहिए, क्या पता कई लोगों को ना पता हो, जो पपेटरी था ना, पपेटरी हड़प्पा टाइम से है, मतलब IVC के लोग जो थे उनको भी पपेटरी पता था, एंड टिल डेट मैनी टाइम्स, आज के टाइम में भी पपेटरी शोज होते ही होंगे, ठीक है, तो यू कैन सी दिस इज द मेजर एक्सटेंशन, ठीक है। तो अब जब टॉयज हैं तो टॉयज कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है,
दिस इज अ बिग फैक्ट, ठीक है। तो ट्रेडिशनल टॉयज इंडिया में जैसे चंखना इज पंजाब, वुडन टॉयज होते होंगे वाराणसी के कोई, तो उनका नाम नहीं दे रखा, बस इतना ही मेंशन है। संबलपुर टॉयज इज फ्रॉम संबलपुर प्लेस, ठीक है। पेपर मेश टॉय, अशकर कंडी, ठीक है, अगेन दिस इज अ नेम फ्रॉम प्लेस। लाइफ डीबी, ठीक है, मणिपुर। एंड देन नेक्स्ट इज थंजॉय, ठीक है। तो थंजॉय से आप याद रख सकते हैं, थंजॉय पेंटिंग्स भी है यहाँ की। एटिटोपाका एंड कोंडापल्ली, एटिटोपाका को जीआई टैग मिला हुआ है। कर्नाटका का चन्नापटना एंड किन्नल, किन्नल इज इन न्यूज दिस ईयर, चन्नापटना हैज बीन अ ओल्ड थिंग नाउ, ठीक है। ये तीनों चारों ओल्ड हो चुके हैं, बहुत कब से है ये इस बार न्यूज में है, ठीक है। सावंतवादी मध्य सॉरी महाराष्ट्र, गुजरात का है थिगड़ा डिंगला। हांडवसी, ये सभी जो है ना, ये इधर पंजाब के, ठीक है। लट्टू, लट्टू इज समथिंग लाइक ना वो स्पिन स्पिन रोलर जो बेब्लेड आता था अपने टाइम में, ठीक है। बेब्लेड किस किस ने ऑपरेट किया हुआ है? एनीवन हियर? तो वो बेब्लेड होता था, ठीक है, उसके साथ एक चेन आती थी, तो वो आपको ना ऐसे उसको एकदम से पुश करके पुल कर देना होता था, तो वो जो बेब्लेड है वो घूमने लग जाता था, ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक लट्टू का फैंसी और समथिंग ऐसे, ठीक है। ये देख लेते हैं, सफुर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। सफुर्ती का एक एमएसएमई का ऑपरेशन है, एंड इसके अंदर क्या किया जाता है, क्रिएशन की जाती है कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की, सो दैट ना उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। तो आज इंडिया के अंदर टोटल 14 टॉय क्लस्टर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है प्रीलिम्स के लिए, बट मेंस में यू कैन जस्ट मेंशन समथिंग, ठीक है। बाकी ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। नेशनल एम्प्लॉय एजुकेशन पॉलिसी जो है उसने ये बोला है कि अब से जो टॉय मेकिंग वाला है ना, ये बच्चों को पढ़ाने से ना लाइक प्ले वे मेथड होना चाहिए। तो एक पीरियड शायद इसका भी लगेगा 6th क्लास के बच्चों से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा मेंशन है, ठीक है। अदर आर्ट फॉर्म्स कौन कौन से हैं? एक अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, सुलावेसी के अंदर ना एक जो केव थी वो काफी वेदरिंग हो चुकी है, तो उसकी वजह से न्यूज में है। तो क्लाइमेट चेंज जो है इफेक्ट कर रहा है, एसिड रेन एंड ऑल। ओके, तो ये सबसे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव है, तो इसके बारे में बस इतना पता होना चाहिए कि सुलावेसी केव है, इसका न्यूज में क्यों मेंशन्ड है, एंड ये कहाँ पे, ठीक है, सुलावेसी में, ठीक है। और भीमबेटका इंडिया में है, ठीक है। तो ये तो जस्ट इन्होंने एक ना बैकग्राउंड दे दिया ऐसे ऐसे, ठीक है। एक ये फिनोमिना ना लास्ट ईयर से ऑब्जर्व होता आ रहा है न्यूज में, ठीक है। ये लास्ट ईयर भी था, तो ये ऑब्जर्व करो एक बार इसको। हेलोक्लेस्टिसिटी, हेलोक्लेस्टी में क्या होता है ना कि जैसे कोई भी चीज है वो आपकी पिगमेंट्स की वजह से जब आर्ट वर्क खराब होने लग जाता है तो उसको बोलते हैं हेलोक्लेस्टी। नेक्स्ट इज मीनाकरी। सो अभी हमने ऊपर एक चीज डिस्कस की थी करी वाली, ठीक है, कलमकारी। तो करी का मतलब क्या होता है? काम। कलम का मतलब होता है पेन, वैसे ही करी का मतलब काम। और मीना, मीना इज समथिंग लाइक सेमी प्रीशियस स्टोन्स टाइप ना होते हैं, मेटल होते हैं, सिरेमिक होता है, ठीक है। इफ एनीवन इज अवेयर, तो जैसे जो ज्वेलरी होती है, ठीक है, ज्वेलरी में जैसे नेकलेस सेट्स होते हैं या फिर आपके रिंग्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उसमें माइट यू हैव सीन कि ना ऐसे ऐसे कलर्ड पिगमेंट डला होता है, पिंक, ब्लू और समथिंग समथिंग, ठीक है। सो वो जो होता है दैट इज द मीनाकारी का काम, ठीक है। तो मीना मीन्स मेटल या सिरेमिक्स होता है, बस दैट इज इट इन दिस, ठीक है। बाकी एक बार आप देख सकते हैं कि पैट्रोन कौन है इसका, राजा मान सिंह ऑफ मेवाड़, ठीक है। ये इसके पैटर्न थे, तब से स्टार्ट हुआ था। तो अगर कोई बोल दे कि उससे पहले था या मुगल्स में आया या जैसे आया, तो यू शुड रिमेंबर, ठीक है। मुगल्स के समय में ये आया था और ये इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बनारस की गुलाबी मीनाकारी, ठीक है, बनारस का नाम है तो पता ही है यूपी का ही है, ठीक है। तो इसको क्या है, जीआई टैग मिला हुआ है, सो जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। आप तानी इज अ ट्राइब, तो ट्राइब के नाम पे है, अरुणाचल प्रदेश में ये ट्राइब, ओके। दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश, सो अरुणाचल प्रदेश में ही है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसके, ठीक है। जीरो विलेज है, जीरो फेस्टिवल भी होता है, इफ एनीवन इज अवेयर, ठीक है। तानी ट्राइब भी होती है, दैट इज इट इन दिस। अब ये एक बात देख लेते हैं, कशीदा, ठीक है, कशीदा या पश्मीना फ्रॉम जम्मू, वेरी नॉन फैक्ट, ठीक है। पश्मीना की जो शॉल होती है कॉस्ट 175K टू 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसी इसकी शॉल रहती है, बड़ी सॉफ्ट रहती है, ठीक है। हैव अ लुक ओवर दैट एनी टाइम इफ यू गेट अ विजिट टू दिस, तो पश्मीना शॉल। आपतानी ट्राइब के नाम पे ही एक फेस्टिवल भी होता है, एम्ब्रॉयडरी भी होती है, कुल्लू शॉल, कुल्लू कुल्लू मनाली वाला कुल्लू, तो नाम से ही हो जाएगा। फिर पंचचुली, ठीक है, ये एक जगह है उत्तराखंड में। लेपचा, लेपचा ट्राइब भी है, लेपचा पास, सॉरी लेपचा ट्राइब है, ठीक है। लेपचा फेस्टिवल भी होता है इसी पे ये। मुगा सिल्क भी है, तो टेक्सटाइल बन जाता है उससे। अंगामी नागालैंड है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वट एवर इज नॉट इंपॉर्टेंट यू कैन जस्ट कट इट दैट टाइम डायरेक्ट अवे, ठीक है। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली कट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
दिस प्लेस इज रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद कंचीपुरम, कांचीपुरम, ये हमें सब पता है, तमिलनाडु, पल्लव किंगडम। पल्लवा किंगडम जो था, कांचीपुरम कांचियम की कैपिटल थी। उसके बाद मैसूर सिल्क हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैठानी महाराष्ट्र का, ठीक है। पैठान, ये पैठान वही प्लेस है जहां पे प्रतिष्ठान भी बोलते हैं इसको, सातवाहन का कैपिटल, सातवाहन आके बसे थे, वो जगह है ये पैठान या प्रतिष्ठान। सी दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये इसमें आर्ट एंड कल्चर पीटी कहीं पे नहीं मेंशन है, ठीक है। ये जो मैंने अलग अलग अटैच किया ना, यू कैन जस्ट मेंशन इट इन योर नोटबुक और वन नोट, बिकॉज ये फैक्ट कहीं पे ना यहाँ पे सच मेंशन नहीं है। देन पटोला, पटोला तो गुजरात का हमें पता है। चंदेरी एमपी का है, और एक वो भी, हाँ, महेश्वर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एमपी का, ये दोनों पीवाई क्यों है, ठीक है। चंदेरी, चंदेरी सिल्क भी आता है, तो ये एमपी का। कोटा बांधनी, बांधनी समथिंग लाइक ना टाई डाई किया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, कपड़ा होगा, कपड़े को जगह जगह से ना नोट कर दिया जाता है, फिर उस पर कलर डाल दिया जाता है, या एक कलर का बकेट है उसमें आपने डाल दिया, फिर जब आप उसे निकालेंगे उसको ड्राई करेंगे, और जब उसके धागों को निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा ना, अगर व्हाइट कलर का कपड़ा था, आपने उसे पिंक कलर का करना चाहा ना, तो व्हाइट पिंक का बन जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं टाई डाई मेथड। तो दैट इज रियली प्रेवलेंट इन राजस्थान, जयपुर, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद में कावी। सो कावी जो है ना, एक चीज, दो फैक्ट है इसके बहुत इंपॉर्टेंट। पहला फैक्ट तो क्या, ये पोर्टुगीज लाए थे, ठीक है, और दूसरा ये खाली रेड कलर का ही होता है, बस, इससे ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया। तो पोर्टुगीज, ठीक है, ये मेंशन है यहाँ पे, व्हाइट और रेड, बेसिकली रेड कलर, हाँ, सी दिस वन आई वाज, ये खाली रेड कलर का ही होता है, और ये कोंकण रीजन में मिलता है, ठीक है। तो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। लंगम मंगनियार, पीवाईक्यू, बहुत ज्यादा ओल्ड पीवाईक्यू भी नहीं है, या तो 16 का है, 17 का है, तो उसमें बेसिकली पूछ लिया था क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फैक्ट जो कि ऐड नहीं है, वो आई वुड लाइक टू ऐड। ये जो मंगनियार्स होते हैं बेसिकली कब गाते हैं, जब कालबेलिया डांस होते हैं, ठीक है। और कालबेलिया क्या, कोई बता सकता है मुझे, व्हाट इज कालबेलिया डांस? एक आधा कोई फीचर? नो वन, ओके। सो कालबेलिया जो होता है वो ब्लैक ड्रेस में होता है, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, जो कालबेलिया तो स्नेक डांस है एक टाइप का, ठीक है, SNAK, स्नेक टाइप, स्नेक डांस, ठीक है, ब्लैक कलर स्नेक डांस का है। और एक ये और चीज है, जो कालबेलिया होता है, जब कालबेलिया डांस एक्चुअली में द गर्ल्स जो परफॉर्म करती है उसको, तो उसी की बीट्स पे ये लोग गाते हैं ना, तो तभी उसी बीट पे वो डांस करती है, ठीक है। तो लंगम मंगनियार्स जो होते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में ज्यादातर है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान इस साइड, ओके। राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर वही प्लेस है जहां पे डेजर्ट नेशनल पार्क मिलता है। सो देयर वाज अ पीवाईक्यू की डेजर्ट नेशनल पार्क इज एक्सटेंडेड इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट्स ओनली। सो दैट स्टेटमेंट वाज करेक्ट, क्योंकि डेजर्ट जो नेशनल पार्क है वो जैसलमेर प्लस बाड़मेर, इन दो में ही मिलता है, ठीक है। GIB के लिए जो जगह फेमस है, ग्रेट इंडियन बस स्टॉप। Okay, so we have completed with this part. Now let us just stop the recording. Thanks a lot for joining the session, and we have completed the 2 important sections of the art and culture. Keep joining for the PT 365 sessions.